سے جواب طلب کر رہے ہیں، اربوں روپے کی چوری ہیں، کیا ہے، کچھ ہے، وہ ایسے رکھتے ہیں کہ پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب دینے لگے ہیں۔ شہباز شریف نے بڑی طنز کیا، پنجاب کے چیف منسٹر کہتے جی بڑی عجیب سی گھٹیا سی زبان استعمال کی۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں شہباز شریف آپ کا کیا ہے؟ آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ۔ شہباز شریف نے عثمان بزدار سے متعلق گھٹیا زبان استعمال کی، وہ بتائیں خود وزیر اعلیٰ کیسے بنے؟ وزیر اعظم عمران خان کا جوابی وار، کہتے ہیں زرداری اور بلاول کو بھی پارٹی وراثت میں ملی، حکمرانوں سے ان کے مال کے بارے میں پوچھنے سے جمہوریت خطرے میں نہیں پڑ جاتی، مستقبل میں پاکستان کا ہر لیڈر عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر منسوخ ہوئے تو پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے، پیپلز پارٹی کا شہباز شریف کے لیے جنگ لڑنے کا اعلان۔ خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت احتساب چاہتی ہے تو اپنے وزراء کا بھی کرے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے طریقہ کار سے پاکستان ڈوبتا دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بتایا جائے غیر قانونی شادی ہال بنانے کی اجازت کس نے دی؟ جیب گرم اور آنکھ بند کرو والا سسٹم نہیں چلے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں سعید غنی نے استعفے کی بات کر کے ہیرو بننے کی کوشش کی تو میئر کراچی کرتوت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کراچی کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ لوگ عوام سے بھتہ لینے کی کوشش میں ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، مشرقی وسطی میں بھی نبھائیں گے۔ فواد چودھری کی دبئی میں میڈیا سے گفتگو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاکستان کا کام امریکہ اور افغان طالبان کو ایک میز پر لانا اور مذاکرات کرانا تھا، امن جنگ سے نہیں ہوتا، ہمارے موقف کو دنیا نے تائید کی۔ افغانستان سے امریکی انخلا کی پیش رفت پر چودھری شجاعت مطمئن، کہتے ہیں امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کے لیے ہمارے 5 سالہ پرانے مشورے پر عمل شروع کر دیا، اب افغانستان اور پاکستان میں امن قائم ہوگا، جنرل باجوہ اور عسکری قیادت دانشمندانہ فیصلے کر رہی ہے۔ حکومت نے بی این پی مینگل کو آرمی چیف سے ملاقات کرانے کا مطالبہ مان لیا، حکومتی کمیٹی سردار اختر مینگل اور آرمی چیف کی ملاقات کے لیے اعلیٰ قیادت کے ساتھ وقت اور تاریخ طے کرے گی۔ بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کی مدت آج رات 12 بجے ختم، بلدیاتی نمائندے میئر، ڈپٹی میئر اور ڈپٹی چیئرمین رات 12 بجے تک ہی کام کر سکیں گے، اس کے بعد تمام اختیارات ایڈمنسٹریٹرز کو منتقل ہو جائیں گے۔ چھٹی کثیر القوی بحری مشق امن 2019 فروری میں شروع ہوگی، 40 سے زائد ممالک امن کے متحد عزم کے تحت شرکت کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر شیخ رشید کی رائے کا احترام ہے مگر چیئرمین اپوزیشن سے ہونا چاہیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن پر تنقید، کہتے ہیں اپوزیشن کے رویے کے باعث اسمبلی کی کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی، وہ تنقید کرے ہلڑ بازی نہ کرے۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کے حلقے پی ایس 94 کرنگی میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری، پی ٹی آئی کے سید ہاشم رضا اور ایم کیو ایم پاکستان کے اشرف جبار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ حکومت نئے گھر کہاں بنائے گی، کس کو دے گی، کچھ پتہ نہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے حکومت بتائے 6 ماہ میں کتنی نوکریاں دی گئیں، آج بھی غریب بھوکا لوگ بے روزگار ہیں، حکومت چاہتی ہے سانحہ ساہیوال کو بھلا دیا جائے۔ سانحہ ساہیوال میں ملوث سی ٹی ڈی کے 6 اہلکاروں کا جوڈیشل ریمانڈ، کئی ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات کے باوجود جی آئی ٹی نے تحقیقات میں عوام سے مدد مانگ لی، کسی شخص کے پاس ٹھوس ثبوت
चश्मदी शहादत या वीडियो मौजूद है तो पेश की जाए, नाम सीगा रास्त में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस के इश्तिहार में अपील। तौसा शरीफ में बच्चों से ज्यादती और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का केस। जिनसी दरिंदा अभी तक कानून की पकड़ में न आ सका। मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। अदनान थाना वराहमा डेरा गाजी खान को भी मतलूब है। पाक भारत आबी मज़ाकरात। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में वफ्द नई दिल्ली पहुंच गया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का कहना है दौरा सिंदास मुआहिदे की तरफ पेशकदमी है। भारत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। कराची में सीटीडी की कार्रवाई, सजाए मौत का मफरूर मुजरिम गिरफ्तार। क्लैशनिकोव और हैंड ग्रेनेड बरामद। खिलजी गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुनशियात फरोश समेत 8 अफराद से रह हिरासत। असलहा भी बरामद। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में वाक़े कोयले की कान में एक और हादसा। कोयला निकालने वाली ट्रॉली रस्सी टूटने से मजदूरों के ऊपर जा गिरी। 2 मजदूर जाँ बहक। अबर कोहिस्तान में फंसे 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 7 अफराद सबक वैली में शदीद बर्फबारी की वजह से फंस गए थे। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। पाकिस्तानी नगमे ने भारतीयों को भी मुतासर कर दिया। भारतीय स्कूल में यौम जमहूरिया पर नन्हे बच्चों ने पाकिस्तानी नगमे पर भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के लिए इम्तिहान बन गई है कि इसकी समाअत जज न होने के बायस एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी UN कमीशन कायम। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक इस्तांबुल का दौरा करेगा। 19 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। रूस का तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, हमले के 4 अफराद एहलकार हलाक। हुकाम के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। फिलिपाइन के जनूबी इलाके में गिरजाघर के बाहर 2 धमाके, 27 अफराद हलाक, 77 जख्मी। धमाके के वक्त गिरजाघर में मजहबी तकरीबात जारी थीं। धमाकों की तहकीकात जारी। अमेरिका, यूरोप और रूस में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी तरहम बरहम। मॉस्को में बर्फबारी से 70 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई फीट बर्फबारी बढ़ने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों परवाजें भी मुतासर। हुकाम के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अमन चौधरी। मैं हूं जमील फारूकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में PS 94 पर ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नियो न्यूज को मौसूल हो गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 77 से MQM के सैयद हाशिम रजा 86 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार 35 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पोलिंग स्टेशन नंबर 41 से MQM 128 वोट लेकर पहले और PTI 70 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही।
मजीद भी आपको बताएंगे। अभी आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर यह है कि पहला नतीजा मौसूल हो गया है। कराची में PS94 पर ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नियो न्यूज़ को मौसूल हो गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 77 से MQM के सैयद हाशिम रजा 86 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार 35 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 41 से MQM 128 वोट लेकर पहले और PTI 70 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा कौन और किसका पलड़ा किस तरह से भारी है ज़मनी मार्के में? देखिए PS94 में ज़मनी इंतखाब जो है आज सुबह इसमें पोलिंग का अमल शुरू हुआ सुबह 8 बजे और 5 बजे शाम में जो इस पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है वोटों की गिनती का जो है वो अमल जारी है। लेकिन सबसे जो पहला गैर हतमी और गैर सरकारी जो नतीजा है वो आ चुका है। पोलिंग स्टेशन नंबर 77 से MQM के मोहम्मद अशरफ जो है वो 86 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि PTI के हाशिम रजा 35 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इसी तरह जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आने का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताते चलूँ पोलिंग स्टेशन नंबर जो 84 है उसमें MQM के जो है उम्मीदवार 84 वोट लेकर सबसे पहले नंबर पे हैं, जबकि PTI के जो है मोहम्मद हाशिम रजा उम्मीदवार 51 वोट लेकर दूसरे नंबर पे। MQM के उम्मीदवार जो है मोहम्मद अशरफ और PTI के उम्मीदवार हाशिम रजा, इन दोनों के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशन से जो आने वाले रिज़ल्ट है उसमें जो है MQM के उम्मीदवार जो है PTI के उम्मीदवार से जो है ज़्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं और PTI के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद हाशिम रजा वो दूसरे नंबर पर जो है सिर्फ फुर्सत है। अब देखना ये है कि जो है यहाँ पर जो बाकी जो दीगर जमातें हैं जिनमें माजिर अब देखना ये है कि यहाँ पर दीगर जमातें हैं वो कितने वोट ले पाती हैं। हम्माद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक घटिया ज़बान इस्तेमाल की, वो बताएं खुद वज़ीर आला कैसे बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी हैं और कहते हैं जरदारी और बिलावल को भी पार्टी विरासत में मिली। हुक्मरानों से उनके माल के बारे में पूछने से जमहूरियत खत्मे में नहीं पड़ जाती। मियाँ वाली में नमल कॉलेज कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आज़म बोले जमहूरियत एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हर लीडर अवाम के सामने जवाबदेह होगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मेरे सामने उस्मान बुज़दार बैठे हैं। शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। दूसरी तरफ देखो वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। आपने तमाशा देख लिया है। जब से इनसे जवाब तलब कर रहे हैं, अरबों अरबों रुपए की चोरी है, क्या है, कुछ है, पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं कि जवाब देने लगे हैं। जो भी पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अवाम के सामने। अवाम का पैसा वो अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा और वो कानून के नीचे होगा। कप्तान के बाद खिलाड़ी की भी नून लीग पर चढ़ाई। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान कहते हैं शहबाज शरीफ ने अपने नाक़िस मंसूबों से सूबे को दलदल में धकेल दिया, बहुत जल्द इस दलदल से बाहर निकल आएंगे। शहबाज शरीफ दौर के तमाम मंसूबे सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला बताएं उन्होंने पंजाब को मिसाली सूबा बनाने के लिए क्या इक़दाम किए। इस्लामाबाद में अलीम खान बोले इमरान खान के विजन के मुताबिक पुलिस में इस्लाहात लाकर दिखाएंगे। जो हमारे ख़ास तौर पे माशी हालात हैं उसका तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे जाती है, क्योंकि वो 10 साल वज़ीर आला थे और तमाम तर जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं इस वक्त जो हमारे लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे शहबाज शरीफ साहब के दौर के हैं। ये प्रोजेक्ट्स बनाए हों जिनको इस वक्त चलाना भी मुश्किल हो रहा है, और वो इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपकी जो आपका फोकस होना चाहिए था वो स्कूल होने चाहिए थे, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थी, वो कॉलेज होने चाहिए थे, वो नई यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे। लेकिन जब आप उसकी बजाय आप ऑरेंज ट्रेन बना दें जिसका 300 अरब रुपया लग जाए, फिर आप मेट्रोज बना दें, इसके साथ आप एक बहुत बड़े दलदल का शिकार हुए हैं और हमें उससे निकलने में बहुत दुश्वारी आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत पंजाब जो है वो अपने जो भी अपने लीडर का विजन था उसके ऊपर हम पूरी तरह काम। अगर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत को धमकी दे डाली। कहते हैं कि इमरान खान ने 50 लाख घर देने की नहीं गिराने की बात की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है
उन्हें पीटीआई के तरीकेकार से पाकिस्तान डूबता दिखाई दे रहा है। कमर जमान कायरा भी इंसाफ सरकार पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम आयद कर दिया और बोले, हुकूमत जो मर्जी कर ले, जयालों को झुका नहीं सकती। पीटीआई के तरीकेकार से पाकिस्तान को डूबता देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफात पर चढ़ाई, बोले हुकूमत को आइन का कुछ नहीं पता। आइन की समझ अभी पीटीआई की हुकूमत को आई नहीं है। मेरा ख्याल है आ जाएगी, बहुत पहली बार हुकूमत के करीब भी आए तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। इनके होते हुए पाकिस्तान मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल हुए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ के लिए जंग लड़ने का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं, हुकूमत एहतसाब चाहती है तो अपने वज़रा का भी करे। उधार की रकम से कोई घर या फैक्ट्री नहीं चलती। हुकूमत 50 लाख घर बनाने के बजाय गिराने में लगी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि तब्दीली सरकार सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर भी उन्हें नहीं झुका सकती। इस तरह के हथकंडों से तो बड़ा अल्लाह का करम है। मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मुझे तो बड़े ताकतवर लोग नहीं झुका सके। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, अपने दोस्तों, अपने नजरिए के साथ हूँ। कमर जमान कायरा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती MNAs जमीनों पर कब्जा करने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाबों के शहजादे को अगले बरस कप्तान की कुर्सी गिरती दिखाने देने लगी है। मंजूर विसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं 2020 में इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। वो अगले बरस वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इमरान खान के साथ जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। टूटने वाले इत्तेहाद में ही से एक और वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। मंजूर विसान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बत का ख्वाब देखा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। जेल में हो या जेल से बाहर, मुलाकात जरूर होनी है। 20 इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है और 2020 में ये इत्तेहाद जो इमरान खान के साथ है सब टूट जाएंगे। इत्तेहाद नहीं रहेंगे, ये अक़लियत में हो जाएगा। अक़लियत के लिए और कोई वे नहीं है। इसी के ही असेंबली से एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा। जेल हो या बाहर हो, जेल हमारे लिए नई बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी नई बात नहीं है, मेरे लिए भी नई बात नहीं है। जेल में हो बाहर हो, मुलाकात जरूर होगी। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हुकूमत से फासले कम और अपोजिशन से बढ़ने लगे। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मुतालबा मान लिया। 3 रुकनी हुकूमती कमेटी सरदार अख्तर मेंगल और आर्मी चीफ की मुलाकात के लिए आला क़यादत के साथ वक्त और तारीख तय करेगी। BNP मेंगल की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन आगा हसन बलोच ने तस्दीक करते हुए कहा, लापता